Hello everyone, myself Prabhat Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss the topic from the subject Discrete Structures and Theory of Logic. The topic of discussion of today is specifications of Boolean expressions. As of now, what we have discussed, what is Boolean algebra, various axioms of Boolean algebra, as well as some of the examples on the axioms of Boolean algebra, as well as I have discussed about the identities and theorems of the Boolean algebra with some algebraic manipulations. In today's lecture, I will discuss about specifications of Boolean expression, that is SOP and POS. SOP is what? Sum of products, and POS is what? Product of sums. Agreed? Sum of product and product of sum. We will discuss about min term as well as max terms, and we will discuss about how we will represent it in the form of a truth table. Starting from the very first slide, we will see what is a resemblance of representing a Boolean function through a truth table. Agreed? So what we will do, a truth table is what? A unique representation of a Boolean function. एक Boolean function को represent करने का एक तरीका. अब जैसे propositional logic था, उसमें भी हम क्या करते थे? उसमें propositions को represent करते थे with the help of truth table. Similarly, Boolean function को represent करने का एक तरीका है truth table. Next is, if two functions have identical truth table, please be clear about this. अगर दो functions की same truth table है, इसका मतलब दोनों function same हैं. That is equivalent. So, जैसा कि propositional logic में हम पढ़ते थे, एक propositions given है, उसका conjunction disjunction हम truth table के थ्रू करते थे, तो हम वहां ये कहते थे कि अगर कोई भी हमें स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को अगर मुझे इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, तो इक्विवेलेंट करूंगा तो क्या? एलएचएस और आरएचएस की ट्रुथ टेबल्स मेरी सेम आ जाए. सिंपल उसी को मैं यहां कह रहा हूं. बूलियन फंक्शन को मैं ट्रुथ टेबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. दो फंक्शंस जिनकी ट्रुथ टेबल सेम है, इसका मतलब वो दोनों फंक्शन इक्विवेलेंट हैं. एग्रीड? नेक्स्ट अगर बात करूं, however the size of a truth table grows exponentially with a number of variables involved. सीधी सी बात है. अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल पे, वन वेरिएबल पे दो ही वैल्यू तो पॉसिबल है, 0 और 1. तो वन वेरिएबल पे ट्रुथ टेबल का तो कोई साइज ही नहीं है. दैट इज सिंपली, अगर मैं रिप्रेजेंट करूं 1, तो 1 को मेरा कैसे रिप्रेजेंटेशन हो रहा होगा? 0 और 1 पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा होगा. एग्रीड? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ट्रुथ टेबल का साइज एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते हैं. जैसे अगर दो वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. राइट? ये चार पॉसिबिलिटी मेरे पास है दो वेरिएबल के केस में. और कैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं? दिस इज 0 1, दिस इज 0 1, दिस इज 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 1 0 एंड दिस इज 1 1. तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट. राइट? सो दो वेरिएबल्स हैं तो चार एंट्रीज हैं, 0 0 से लेके 1 1 तक. तीन वेरिएबल्स हैं तो 8 एंट्रीज हैं. वो आप समझ रहे होंगे, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 3 टाइम 1. और जब चार वेरिएबल हो जाएंगे तो कितनी एंट्रीज हो जाएंगी? 16. पांच वेरिएबल तो 32. सो इट इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली टू 2 पावर n, and n is the number of the variables. Right? So this is the basic justification of truth table and how the size of a truth table grows exponentially with the number of variables involved. Now, this is a basic representation of a 3-variable truth table in the form of the functions. Then we will see these functions according to SOP and POS. First, enumerates all the possible combination of a variable values and corresponding function values. सबसे पहले उसने क्या कहा?
एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, तो आप एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स की सारी वैल्यूज को आप पेन डाउन कर दो। राइट, आपने सारी वैल्यूज आपने यहां पे लिख दी। राइट, अब यहां पे अभी मुझे कोई फंक्शन f1 दे रखा है, f2 दे रखा है, f3 दे रखा है, अभी इनकी कंडीशंस गिवन नहीं है। राइट, तो फंक्शन 1 को इसने 1 कह रखा है यहां पे, बाकी सब 0 है। इसको अगर मैं लिखूं तो फंक्शन 1 जो है वो मेरा क्या हो सकता है, x y z, अगर मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में बात करूं। राइट, और अगर मैं बात करूं इन द फॉर्म ऑफ सम, तो इसको लिख सकता हूं मैं व्हाट, x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश। राइट, दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, ये सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। तो मेरे पास 3 फंक्शंस हैं, इसमें यहां पे इसकी वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि ये एक्स वाई जेड था, तब ये था, यहां पे 1 है, तो मैं क्या कहूंगा F2 में कहूंगा x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट प्लस नेक्स्ट x कॉम्प्लीमेंट yz प्लस यहां पे कहूंगा x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां कहूंगा x y कॉम्प्लीमेंट एंड z। ये मेरा फंक्शन होगा F2। तो ये आप समझ रहे होंगे, जहां पे मुझे 0 गिवन है, अगर मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो 1 को मैं कंसीडर करके चल रहा हूं x, और 0 को कंसीडर करके चल रहा हूं उसका कॉम्प्लीमेंट। राइट, और अगर मैं उसे सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो जस्ट उसका डुअल देख रहा हूंगा। सिमिलरली F3 को भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूंगा फंक्शन की टर्म्स में। तो ये जो F1 F2 F3 मुझे फंक्शंस की वैल्यू 0 और 1 मिल रही है, ये तब मिल रही है जब मुझे फंक्शंस डिफाइन होंगे ये इस ट्रूथ टेबल के कोरोस्पोंडिंग। एग्रीड, इस ट्रूथ टेबल के कोरोस्पोंडिंग जब ये फंक्शंस डिफाइन होंगे, इन फंक्शन को चाहे वो स्टॉप फॉर्म में हो या पॉज फॉर्म में हो, उनको रेड करके मैं इनकी वैल्यूज को डिफाइन कर रहा हूं 0 एंड 1। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे मुझे फंक्शंस के टर्म में चीजें गिवन है। अनलाइक ट्रूथ टेबल, एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग अ बुलियन फंक्शन आर नॉट यूनिक। राइट, सो सिंपल यहां पे क्या है कि मैं अगर एक्सप्रेशंस के फॉर्म में देखूं तो f x y z मुझे गिवन है ये। तो यहां पे देखें x डैश y डैश एंड z डैश। अब x डैश y डैश z डैश मुझे क्या वैल्यू है, x डैश y डैश z डैश ये वैल्यू अगर मैं बात करूं, ये है x डैश y डैश z डैश, ये है x डैश y डैश z, ये है x डैश y z डैश, ये है x डैश y z, ये है x y डैश z डैश, ये है x y डैश z, ये है x y z डैश और ये है x y z। अगर मैं इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और अगर इसी चीज को सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z। राइट, ये वाली चीज हो जाएगी नेक्स्ट x प्लस y प्लस z कॉम्प्लीमेंट। राइट, तो वी विल सिंपली डू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। तो व्हाट वी हैव डन हियर, हमने इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया, यहां पे x डैश y डैश z पे 1 आ गया, x डैश y z डैश, x डैश y z डैश मतलब ये वाली चीज यहां पे 1 आ गया। नेक्स्ट x y z डैश, x y z डैश मतलब यहां पे 1 आ गया। अब जब मेरे पास ये g फंक्शन आया, तो अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई मुझे फंक्शन गिवन है उसमें तीनों वेरिएबल होने जरूरी हैं। यहां पे 3 वेरिएबल का चल रहा है तो तीनों वेरिएबल हों। तो जैसे यहां y z डैश है तो इसको मैं x मान के चलूंगा, x भी और x कॉम्प्लीमेंट भी। तो मैं ये मान लूंगा बाय डिफॉल्ट कि x डैश y डैश z डैश तो था ही, प्लस x प्लस x कॉम्प्लीमेंट मैं इसमें ऐड कर दूंगा y z डैश, और इसको लिखेंगे हम फिर x डैश डॉट y डैश डॉट z डैश प्लस x y z डैश प्लस x डैश y z डैश। अब x डैश y z डैश और x y z डैश तो देखूंगा तो ये g वाला फंक्शन भी मेरा f वाले फंक्शन के इक्विवेलेंट होगा।
तो अब यहां से मेरा जो कंक्लूजन था वो ये था कि मुझे अगर 3 वेरिएबल की एक ट्रुथ टेबल गिवन है और कुछ फंक्शन डिफाइंड है तो उसे मैं कैसे 0 1 और रिप्रेजेंट कर रहा हूं 0 और 1 एक फंक्शन की फॉर्म में। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में चीजें हैं, जैसे मुझे ये फंक्शन ही प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम है ये पीओएस, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता तो ये चीज क्या होती, ये वाली चीज x प्लस वाई प्लस जेड इन मल्टीप्लीकेशन विद व्हाट, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड इन मल्टीप्लीकेशन विद व्हाट, x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा होता व्हाट, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में, और यह भी मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ सम है तो मैंने उसे कैसे लिखा है वो मैं समझ पा रहा हूं, राइट। तो f फंक्शन है, g फंक्शन है, ध्यान ये देना है 3 वेरिएबल है तो तीनों वेरिएबल होने चाहिए। अगर 2 वेरिएबल गिवन है तो मैं उसको एक क्या नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉ से x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट उसमें ऐड करूंगा, क्योंकि x की दोनों वैल्यूज यहां पे पॉसिबल है, उनको ऐड करके मैं ये जनरेट कर लूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग में मैं वैल्यूज लिखूंगा और फिर मैंने ये पाया कि दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं, राइट। नेक्स्ट इज algebraic manipulation. Boolean algebra is a useful tool for simplifying the digital circuits. Why do it? Simpler can mean cheaper and smaller and faster. So why we'll see this? This is one of the example of algebraic manipulations. That is this x complement yz, x complement yz complement plus xz. अब जैसे ही मैंने यहां पे देखा तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या करा, x कॉम्प्लीमेंट y को मैंने यहां पे कॉमन लिया, अंदर बचा z प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, राइट। इस एक्सप्रेशन को मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैंने सबसे पहले देख लिया यहां x डैश y है, x डैश y है, ये कॉमन हो गया, z प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट आया, ये 1 हो गया। अब ये वाली चीज मेरे पास बची, इस वाली चीज को क्या मैं फर्दर कंक्लूड कर सकता हूं, कुछ फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं? नहीं। अगर ये y की जगह z होता तो कर सकते थे, z आंसर आ रहा होता, लेकिन यहां पे y है वहां पे z है, कॉमन कुछ ले नहीं सकते, तो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस फंक्शन गिवन टू अस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स। वी विल सी इट वन बाय वन। फॉर्मल टेक्निक्स फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस। फर्स्ट, कैनोनिकल फॉर्म। Identical functions will have exactly the same canonical forms, right? सेम फंक्शन जो आइडेंटिकल फंक्शंस हैं उनकी सेम कैनोनिकल फॉर्म होगी। इन ईच टर्म ऑल लिटरल शुड अपीयर इन अ कैनोनिकल फॉर्म्स। तो कैनोनिकल फॉर्म की बात यहां पे ये हो रही है कि अगर मेरे पास 3 लिटरल्स या 3 वेरिएबल्स हैं तो सारे के सारे वेरिएबल्स वहां पे होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको ऐड करेंगे इस तरह से जैसे x की दोनों कंडीशंस हैं, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, राइट। और स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या है, मिन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है, राइट। मिन टर्म हम प्रोडक्ट्स में बात करेंगे, मैक्स टर्म हम बात करेंगे, मिन टर्म हम प्रोडक्ट्स की फॉर्म में बात कर रहे होंगे, मैक्स टर्म हम सम की फॉर्म में। सम ऑफ मिन टर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, सम ऑफ मिन टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सम। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे अभी, राइट। नाउ वी विल सी व्हाट इज अ बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच वी आर यूजिंग। लिटरल क्या होता है, एक वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट को हम लिटरल कहते हैं। अ वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड एज लिटरल। प्रोडक्ट की टर्म क्या है, प्रोडक्ट मतलब डॉट और सम का टर्म मतलब लिटरल जो प्लस से सिग्निफाइड है। लिटरल मतलब क्या, वेरिएबल्स। सम वाली टर्म्स कौन सी हैं, जो प्लस से रिप्रेजेंटेड है लिटरल्स, और प्रोडक्ट वाली टर्म्स कौन सी हैं, जो डॉट से रिप्रेजेंटेड है। मिन टर्म क्या होता है, प्रोडक्ट की टर्म इन विच ऑल द वेरिएबल्स अपीयर्स एग्जैक्टली वंस, आइदर कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड। मिन टर्म क्या है, प्रोडक्ट वाली टर्म, राइट। मिन टर्म इज अ प्रोडक्ट टर्म और जिसमें सारे वेरिएबल एक ही बार आए, या तो कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड, राइट। और मैक्स टर्म क्या है, एक सम टर्म इन विच ऑल द वेरिएबल्स अपीयर एग्जैक्टली वंस, आइदर कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड। तो व्हाट इज द बेसिक टेक अवेज फ्रॉम दिस स्लाइड, लिटरल्स मतलब वेरिएबल्स, प्रोडक्ट टर्म मतलब डॉट, सम टर्म मतलब प्लस, मिन टर्म क्या है, वो प्रोडक्ट टर्म
वो प्रोडक्ट टर्म जिसमें सारे वेरिएबल्स एक ही बार आए, राइट, कॉम्प्लीमेंट हो या अनकॉम्प्लीमेंट हो। और मैक्स टर्म मतलब वो सम वाली टर्म। मिन टर्म क्या है? प्रोडक्ट में मिन। और मैक्स टर्म क्या है? वो सम वाली टर्म जिसमें सारे वेरिएबल्स एक ही बार आए, आदर इन द कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। नेक्स्ट, this is the two examples representing about what is a min term and max term. Min term is denoted by small m, max term is denoted by capital M. This is min term and this is max term. Min term is denoted by small m and max term is denoted by capital M. अब अगर तीन वेरिएबल्स हैं a b c, then b इक्वल टू 0 1 1, अगर ये कोई कंडीशन है 0 1 1, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मिन टर्म जो होगा वो क्या होगा? 0 मतलब क्या यहां पे आ रहा है? a कॉम्प्लीमेंट b c, विच वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस। तो मिन टर्म को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्रीड। और मैक्स टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? इन द टर्म फॉर्म ऑफ द व्हाट? सम की फॉर्म में। तो अगर यही तीन वेरिएबल हैं, ये कंडीशन मुझे गिवन है, तो मैक्स टर्म को मैं रिप्रेजेंट किसे करूंगा? ये 0 मेरा क्या हो जाएगा? ए। अब सोचो, इस मिन टर्म का मैक्स टर्म निकला है तो क्या? ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो हम एक तरह से क्या कर रहे हैं? ए कॉम्प्लीमेंट बी सी को इक्वल टू बता रहे हैं ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। एक तरह से ये चीज जो है ये स्केल डुअल निकाल रहे हैं हम, एग्रीड। तो हम मिन टर्म मैक्स टर्म क्या कह रहे हैं? मिन टर्म मेरी प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। मतलब मिन टर्म अगर मैं देखूं तो जो भी मेरे 8 वेरिएबल्स हैं, अगर मैं उसे लिखूं तो आठों मेरी क्या कंडीशन होंगी? एक्स जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, एक्स डैश वाई डैश जेड, एक्स डैश वाई जेड डैश, एक्स वाई डैश जेड डैश, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक्स डैश वाई जेड, इसके बाद आ जाएगा मेरा एक्स वाई डैश जेड, नेक्स्ट एक्स वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई जेड। ये मेरी सारी मिन टर्म्स हैं एम। एम किसके? प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसी को अगर मैं प्लस में रिप्रेजेंट करने लगूं, ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। ये आप समझ पा रहे हैं डुअलिटी से कैसे हम इसका मैक्स टर्म निकाल रहे होंगे। नेक्स्ट, सिंपल रिप्रेजेंटेशन, वही जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे पिछली स्लाइड में। ट्रुथ टेबल की फॉर्म में मिन टर्म और मैक्स टर्म्स का जस्टिफिकेशन। तो मिन टर्म एंड मैक्स टर्म आर इजी टू डिनोट यूजिंग अ ट्रुथ टेबल एंड एज्यूमिंग 3 वेरिएबल एग्जांपल, ऑर्डर इज 6। तो ये तीनों वेरिएबल को हमने यहां पे रिप्रेजेंट करा, मिन टर्म एम में और मैक्स टर्म कैपिटल एम में, राइट। सो अब मिन टर्म को मैंने यहां से बता दिया, दिस इज M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, राइट। M7 तक की मिन टर्म्स हो गई। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ये सिंपल हमने सारा रिप्रेजेंटेशन मिन टर्म्स का कर दिया। और इन्हीं मिन टर्म्स को मैक्स टर्म में लिखूंगा। मिन टर्म प्रोडक्ट को हमने सम के फॉर्म में लिखा, तो दिस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एम नॉट को रिप्रेजेंट करा, इसको कैपिटल में रिप्रेजेंट कर दिया। ध्यान ये देना, ये सिग्मा से रिप्रेजेंट होगा, ये पाई से रिप्रेजेंट होगा, ये स्मॉल एम होगा, ये कैपिटल एम होगा, ये प्रोडक्ट होगा, ये सम होगा। तो 3 चीजें इसमें मुझे ध्यान रखनी है। क्या? एक स्मॉल एम, कैपिटल एम, सिग्मा, पाई, प्रोडक्ट और सम, राइट। सो इसको मैंने ये लिखा, ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा? एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। ये होगा एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड को जेड, और एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा ट्रुथ टेबल की फॉर्म में 3 वेरिएबल वाले को मिन टर्म मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट किया हमने। अब कैनोनिकल फॉर्म्स की फॉर्म में इसको कैसे देख रहे हैं वो देखते हैं। कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट्स और कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स का यहां पे ये मतलब है कि यहां पे अगर मैं देखूं,
ये जो मेरी चीजें आई हैं ये प्रोडक्ट्स, इनमें 3-4 का सम, और प्रोडक्ट ऑफ सम का क्या मतलब है, ये जो सम है इन सबका प्रोडक्ट। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट। तो मिन टर्म्स इंक्लूडेड आर दोज mj सच दैट दिस इक्वल टू 1 इन दिस फॉर दिस वैल्यू फंक्शन, राइट। सो वो वाले मिन टर्म्स जिनको हम इंक्लूड कर रहे हैं इसको हम कह रहे हैं कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो व्हाट वी आर सेइंग इज जैसे x डैश y डैश z डैश प्लस x डैश y z डैश प्लस एक्स वाई जेड अगर इंक्लूड करा तो इसकी वैल्यू 1 आ रही होगी। इसे मिन टर्म को हमने रिप्रेजेंट करा एसओपी में, दिस इज एसओपी। और प्रोडक्ट ऑफ सम क्या है, कुछ सम दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट, दैट इज क्या, x प्लस वाई प्लस जेड का प्रोडक्ट, x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड और x डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश, इसको प्रोडक्ट को 0 की होने की बात कर रहे हैं। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम, एग्रीड। सो दिस इज द बेसिक टेक अवे फ्रॉम दिस स्लाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे कि वहां पे बताया एसओपी में 1 रिटर्न हो रहा है और पीओएस में 0 रिटर्न हो रहा है। तो अब इसको ध्यान रखते हुए सिग्मा एम प्रोडक्ट 1 पाई एम सम 0, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है एसओपी और पीओएस को लेते हुए या मिन टर्म और मैक्स टर्म को लेते हुए। ट्रुथ टेबल है इस फंक्शन की, राइट में गिवन है ये। अब कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म F1 सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है। तो हमें F1 कोई फंक्शन दे रखा है क्या, M1 प्लस M2 प्लस M4 प्लस M6। इस तरह से अगर कोई फंक्शन गिवन है ना M1 M2 M4 M6, तो हमें समझ जाना है किसके बारे में बात हो रही है। दिस इज M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। तो हमने क्या करना, M1 लिख लिया A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C, M2 A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट, M4 A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट और M6 लिख लिया A B C कॉम्प्लीमेंट। और जो बात कर रहे थे M1 M3 M5 और M7, सॉरी M1 M2 M1, सॉरी यहां पे नहीं, यहां के बारे में बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं M1 M2 M4 और M6। इन सब को हमने 1 से रिप्रेजेंट करा, ये सब 1 से रिप्रेजेंट हो गए, ये मेरे पास कंडीशन आ गई। इसको फर्दर हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर ये मिनिमाइज हो पा रहा है तो। और इसी चीज को अगर प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखेंगे तो कैसे, प्रोडक्ट ऑफ सम में मान लो M0, ये M0 हो गया, M0 M3 M5 और M7, इन सबको 0 से रिप्रेजेंट करा। 0 से रिप्रेजेंट करने के बाद M0 ABC, M3 क्या हो गया A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से रिप्रेजेंट करा। और रिप्रेजेंट करने के बाद हमने सिंपल कह दिया MJ इक्वल्स टू MJ, जो कि हम इक्वल से बता सकते हैं यहां पे, एग्रीड। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम। अब कुछ एग्जांपल्स को देखते हुए कन्वर्जन ऑफ एसओपी, ध्यान देना, एसओपी का सम ऑफ प्रोडक्ट का कन्वर्जन फ्रॉम स्टैंडर्ड टू कैनोनिकल फॉर्म, स्टैंडर्ड से कैनोनिकल, एसओपी का कन्वर्जन, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट्स के सम का कन्वर्जन स्टैंडर्ड से कैनोनिकल फॉर्म में। तो वो कैसे देखते हैं, सिंपल, एक्सपेंड नॉन कैनोनिकल टर्म्स बाय इंस्पेक्टिंग इक्विवेलेंट ऑफ 1 इन ईच केस बाय x प्लस x डैश इज इक्वल टू 1, रिमूव डुप्लीकेट मिन टर्म्स, जो डुप्लीकेट मिन टर्म्स है उन्हें रिमूव कर रहे हैं। तो सिंपली क्या करा, यहां पे ये फंक्शन गिवन है A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C, यहां 2 वेरिएबल है, यहां 2 वेरिएबल है, तो बट ऑब्वियस है इसका A और इसका B दोनों कंडीशन के साथ आएगा क्या, A प्लस A कॉम्प्लीमेंट और A B प्लस B कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब इस वाली चीज को हमने कैसे करा, दिस इज A B C कॉम्प्लीमेंट, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट B C, और इस वाली चीज को कह रहा है A B C कॉम्प्लीमेंट A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट। अब ये और ये वाली टर्म मेरी सेम आई, डुप्लीकेट टर्म, इसको मैंने रिमूव कर दिया और मैंने 4 टर्म्स को यहां पे लिखा, और ये मेरा सिंपल एक एसओपी का कन्वर्जन हो गया स्टैंडर्ड से कैनोनिकल फॉर्म में। स्टैंडर्ड कोई भी फॉर्म मुझे गिवन है, कैनोनिकल क्या है, जितने वेरिएबल्स हैं 3 के 3 वेरिएबल, वो सारी फॉर्म्स में तीनों होंगे।
तो 2 वेरिएबल को 3 में कैसे लाना, उसकी दोनों कंडीशंस को लिखा हमने यहां पे। एग्रीड। तो हमने क्या कर दिया, सिंपल एसओपी की फॉर्म मुझे गिवन थी सम ऑफ प्रोडक्ट्स की, उसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता था, कैनोनिकल में मैंने क्या करा, 3 वेरिएबल हो तो तीनों वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है, और डुप्लीकेट टर्म्स को मैंने रिमूव कर दिया। ऐसे ही पीओएस को कन्वर्ट करा, प्रोडक्ट ऑफ सम को स्टैंडर्ड से कैनोनिकल फॉर्म में। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां पे कर रहे थे हम x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट को 1, यहां करेंगे x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट को 0। तो उसी को फोकस करते हुए ये चीज मेरे पास गिवन है, यहां a कॉम्प्लीमेंट आ गया, यहां पे b कॉम्प्लीमेंट आ गया। इस चीज को मैंने कैसे लिख दिया, a ये वाली टर्म, ये आ गई a कॉम्प्लीमेंट ये वाली टर्म, ये इस वाले, ये दोनों टर्म सेम हो गई, डुप्लीकेट, इन दोनों को मैंने रिमूव कर दिया, ये मेरा रिजल्टेंट आंसर आ गया। एग्रीड। तो मैंने इस तरह से यहां पे पीओएस को, प्रोडक्ट ऑफ सम को स्टैंडर्ड से कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करा। स्टैंडर्ड में मुझे ए और बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कैनोनिकल में मुझे तीनों वेरिएबल की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, मान लो ये कोई फंक्शन गिवन है एबीसी और ये कुछ मुझे गिवन है, तो जैसे ये गिवन है सिग्मा मतलब क्या होगा, सिग्मा मतलब बट ऑब्वियस है, मैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, मतलब प्रोडक्ट्स वाली चीजों के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया 1 4 5 6 7, तो 1 4 5 6 7 को मैंने यहां लिखना चाहा, तो 1 4 5 6 7 को मैंने इस तरह से लिखा, ये मेरे पास फंक्शन आ गया, राइट। ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये सारी कंडीशंस मेरे पास यहां पे आ गई, ठीक है, 1 4 5 6 7 को लिखने के बाद, राइट। तो अब यहां से मैंने देखा 1 4 5 6 7 को लिखने के बाद, अब जब मैंने यहां पे देखा तो यहां पे ए बी और ए बी कॉमन आया, मैंने सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, राइट। अब ये वाला पार्ट यहां तक खत्म हुआ, अब ए बी कॉम्प्लीमेंट है, यहां सी सी कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी सी कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने क्या करा, इस वाले पार्ट में मैंने एक टर्म इसमें ऐड करी एक्स्ट्रा, और जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड करी वो मैंने यही वाली टर्म को ऐड कर दिया, ये वाली। क्यों, क्योंकि हो क्या रहा है, ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो हो जाएगा ए बी सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट से ए बी निकल के आ जाएगा, राइट। ऐसे ही आगे मेरे पास क्या बच गया, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि अगर सिंपल मैं इसी टर्म को फिर से ऐड कर दूं, तो इस टर्म को फिर से ऐड करना मतलब मान लो यही टर्म फिर से ऐड कर दी, ए डुप्लीकेट टर्म को ऐड करना, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और जब इसको ऐड करा तो मैंने क्या करा, यहां पे ए बी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लिया, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आ गया, और यहां वाले केस में बी कॉम्प्लीमेंट सी को कॉमन लिया और ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, राइट। तो मैंने इस डुप्लीकेट टर्म को ऐड करा, जैसे ही इस डुप्लीकेट टर्म को ऐड करा तो मुझे ये वाली चीजें यहां पे मिल गई जो मैं यहां पे बात कर रहा हूं, राइट। अब ये सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट मेरा 1 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, मेरे पास ये रिटर्न हुआ। अब ए को कॉमन लेके बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट से मेरा 1 हो गया, तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी मेरा एक सम ऑफ प्रोडक्ट का सिंप्लीफिकेशन रिटर्न हुआ, राइट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ सम का सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो अभी सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या किया, मैंने एक डुप्लीकेट टर्म ऐड करी, उसके ऐड करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में मेरे लिए हेल्पफुल है। तो सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ सम की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पाई 0 2 3 गिवन है, पाई का मतलब ही क्या हो गया, मैक्स टर्म्स। तो 0 2 3 का मतलब क्या हो गया, ए बी सी, 2 3 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, और ये हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब मुझे इसमें डुप्लीकेट टर्म ऐड करनी है, तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूं इसको, अगर मैं इन दोनों टर्म्स की बात करूं, ए प्लस सी को कॉमन लेके मैं बी बी कॉम्प्लीमेंट बना सकता हूं, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, ए प्लस सी लिया और अगले स्टेप में इसको ए प्लस सी बी बी कॉम्प्लीमेंट बना दिया, और ये बी बी कॉम्प्लीमेंट मेरा 0 हो गया होगा। इसके बाद मैं इसी टर्म को फिर से इंट्रोड्यूस कर दूं, जैसे यहां पे कर रखा है, तो इस टर्म को फिर से इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो यहां मैं सिंपल क्या कर रहा हूं,
ए बी कॉम्प्लीमेंट सी है और वहां ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है, तो मैंने ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लिया और सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। इस वाली टर्म को मैंने ऐड किया था। अब फिर से ये 0 हुआ, मेरे पास ये वाली टर्म बची, ये वाली टर्म मेरा आंसर आ गया। सो इस तरह से मैंने इसमें डुप्लीकेट टर्म को ऐड किया है, राइट। नेक्स्ट इज therefore we try to combine terms to get a lower literal expression। इसीलिए हम कुछ टर्म्स को, डुप्लीकेट टर्म्स को ऐड करते हैं जिससे वो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए इन ऑर्डर टू लीड अ लेस एक्सपेंसिव इंप्लीमेंटेशन। वही एग्जाम्पल, और ये यहां पे ये बताना चाह रहा है, ये मैंने इसको डुप्लीकेट टर्म ऐड किया, ए प्लस सी रखा, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आया, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट रखा, सी सी कॉम्प्लीमेंट आया, ये 0 रहा, ये 0 रहा, ये वाली टर्म्स को मैंने इस तरह से यहां पे लिख दिया। दिस वॉज द स्टैंडर्ड पीओएस। सो ड्यूरिंग दिस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस कीपिंग इन माइंड द रिप्रेजेंटेशन थ्रू द ट्रूथ टेबल। We started with min term, max terms, sum of product, product of sum. Then we have seen the SOP to convert from a standard form to a canonical form, POS for conversion from standard to canonical form, and we have also seen why we are adding a duplicate term in order to simplify the SOP and POS. Hope you all have understand this lecture. Thank you everyone.